Part B, we'll continue with the numericals. Part B, question number 23. The question says, calculate the current flowing through each of the resistors A and B in the circuit shown below. So कुछ ऐसा उन्होंने डायग्राम बनाया है. There are two resistors. And a battery is connected to the two resistors. Okay. The value of the resistors are 1 ohm and 2 ohm. And the EMF of the cell is 2 volts. The current will flow in this direction. Now we have to find the current in each of the resistance. मतलब इस रेजिस्टर में कितना करंट जा रहा है और ये रेजिस्टर में कितना करंट जा रहा है, ये हमें फाइंड करना है. ठीक है. करंट फ्लो इन ईच ऑफ द रेजिस्टर. Now here we have two resistors and the battery. We have to find the current flowing in each of the resistor. मतलब इसमें कितना करंट जा रहा है और इसमें कितना करंट जा रहा है इंडिविजुअली. ठीक है. सर्किट का करंट फाइंड करने के लिए नहीं बोला है कि सर्किट में कितना करंट फ्लो हो रहा है, सिर्फ इस रेजिस्टर में कितना हो रहा है और इस रेजिस्टर में कितना हो रहा है, ये हमें करंट फाइंड करना है. सो हमारा फॉर्मूला क्या होता है? V इज इक्वल्स टू IR. ओके. सो पहले मैं क्या करूँगा, पहले फॉर रेजिस्टर A, ये A है आपका और ये B है रेजिस्टर. ओके. तो फॉर दिस रेजिस्टर A हमें फाइंड करना है करंट. तो वोल्टेज तो सेम है दोनों के लिए, वोल्टेज इज 2 volts. Current I don't know. And for the first resistor I am talking about A. तो A का वैल्यू क्या है? 1 ohm. Okay. So I will solve this. तो I क्या मिल जाएगा हमें? I will be 2 amperes. So current in resistor A is 2 ampere. Is 2 ampere. Then for resistor B, जो रेजिस्टर के लिए फाइंड कर रहे हो उसकी वैल्यू लेनी है बस. V is equal to IR. तो वोल्टेज रिमेन्स द सेम बिकॉज ये पैरेलल में कनेक्टेड है. वोल्टेज विल रिमेन द सेम. नाउ टेक द रेजिस्टर एज 2 ohms. So 2 upon 2I, you will get I as 1 ampere. Okay. So therefore current in resistor B is 1 ampere. Writing the statement is very important. Copy this. Next, question number 24. Again we have a diagram where we have two resistors. One of the resistor is unknown. What is unique about this one? That one of the resistor here is unknown. Okay. यहाँ पे मैंने दो सेल लगाए हैं. Doesn't matter, दो सेल, सिंगल, दो, तीन, कितने भी सेल हो सकते हैं सीरीज में, उससे उसकी वैल्यू बढ़ जाती है बस.
two resistors are in parallel. Okay, we have an ammeter here. We have an ammeter here whose value is 0.4 ampere. मतलब this is the reading of the ammeter. Reading of the ammeter means this is the current. Okay. The value here is 4 volts. Voltmeter. Voltmeter means nothing but it measures the value of the cell, voltage of the cell. This one resistor is 2 ohms and this resistor is R ohms, unknown. So now what do we have to find? Find the total resistance of the circuit. Find the total resistance of the circuit. See, understand one thing. यहाँ पे कोई internal resistance तो नहीं है, ठीक है? कोई internal resistance नहीं है, तो उसको देखने की जरूरत नहीं है. EMF नहीं है, कुछ नहीं है. हमारे पास voltage है, ठीक है? Current है और ये resistor है, ठीक है? अभी assume करो for a second that ये दोनों resistor हमें नहीं पता, okay? But मेरे पास voltage है और current है. So using the voltage and current, I can find the resistance, the total resistance. ठीक है? इसमें से एक वैल्यू अननोन है. ओके, तो हम क्या करते हैं, पहले टोटल रेजिस्टेंस फाइंड कर लेते हैं. टोटल रेजिस्टेंस फाइंड कर लेते हैं. मुझे वोल्टेज पता है और करंट पता है, ठीक है? तो सर हम लोग को लेकिन वोल्टेज और करंट पता है, तो डायरेक्टली सेकंड रेजिस्टर का वैल्यू क्यों यूज करते हैं V = R? नहीं, उन्होंने पहले क्वेश्चन में पूछा क्या है, फाइंड द टोटल रेजिस्टेंस. फाइंड द टोटल पहले ही पूछ लिया है, फाइंड द टोटल रेजिस्टेंस. तो अब तक तो ये अननोन है ना, तो इसलिए हम इसको हाइड करते हैं, वोल्टेज और करंट यूज करके टोटल रेजिस्टेंस को फाइंड करते हैं. तो V is 4 volts and I is 0.4 amperes. So V is equal to IR. 4 equals 0.4 into R. So 4 upon 0.4 is R. What will be the value of R here? So what will be the value here? 0.41. तो आपको R मिलेगा 10 ohms. ये R जो 10 ohms मिला, ये क्या है? ये पूरा रेजिस्टर मिल गया मुझे 10 ohms. मतलब ये पूरा जो वैल्यू है इसकी वो है 10 ohms. सर्किट का एक्सटर्नल रेजिस्टेंस मिल गया 10 ohms. सर्किट का रेजिस्टेंस मिल गया 10 ohms. अब मुझे पता है कि जो 10 ohms है ये इन दोनों से बना है, ठीक है? इन दोनों से बना है ये 10 ohms. नाउ वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ R. ओके, सो अब कैसे ढूंढेंगे? ये जो R है अननोन, ये तो टोटल रेजिस्टेंस है, इसको RT नाम दे दो तो कंफ्यूजन नहीं होगा. इसको RT नाम दे दो. ये टोटल रेजिस्टेंस था सर्किट का. ओके, टोटल रेजिस्टेंस मुझे मिल गया सर्किट का 10 ohms. अब इस 10 ohms ये दो पार्ट्स में डिवाइडेड है यहाँ पे, ठीक है? तो ये पैरेलल कॉम्बिनेशन है. सो आई विल यूज द फार्मूला फॉर पैरेलल फॉर द सेकंड पार्ट. 1/RP equals 1/R1 plus 1/R2. ठीक है? 1/RP मतलब टोटल रेजिस्टेंस. तो टोटल रेजिस्टेंस इज 10 ohms. सो यहाँ पे आएगा 1/10 इक्वल्स एक रेजिस्टर क्या है 20 ohms और दूसरा क्या है नॉट नोन R. नाउ आई कैन इजीली फाइंड R. ये 1/10 minus 1/20 equals 1/R. Okay, so taking LCM, 2 minus 1/20 equals 1/R. 1/20 equals 1/R. So R is 20 ohms. Then the third part is to find the current flowing through R. Current flowing through R मतलब current flowing through this resistor. सिर्फ ये एक resistor, ठीक है? तो वापस करेंगे थर्ड पार्ट में V is equal to IR.
ठीक है, वोल्टेज तो सेम ही है, वोल्टेज तो हमेशा 4 वोल्ट ही रहेगा। करंट फाइंड करना है और किस रेजिस्टर में फाइंड करना है, ये R में। तो ये R की वैल्यू क्या है, 20 ohms। यहाँ पे रेजिस्टर कौन सा लेंगे, 20 ohms। समझ में आ रहा है मैंने क्यों 20 ohms लिया, क्योंकि मैं 20 ohms के अक्रॉस का करंट फाइंड कर रहा हूँ, सिर्फ इसके अक्रॉस कितना करंट क्या है वो ढूंढ रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे 20 ohms लिया। नाउ दिस 420 will come down here in the denominator, so 1/5 equals I, this will give me I as 0.2 amperes। so current through R is 0.2 amperes। copy this। पेपर सबमिट किया था, लेट हो रहा था, आ ही रहा था, रास्ते में ही था, टैक्सी पकड़ रहा था, तो फोन आया मुझे। Next, question number 25. A particular resistance wire has a resistance of 3 ohms per meter। Resistance क्या है वायर का, 3 ohms पर मीटर। मतलब जितना लंबा वायर होगा, जितने मीटर्स का वायर होगा उतने मल्टीप्लाई होगा। जैसे 1 मीटर का रेजिस्टेंस है 1 ओम, तो अगर 2 मीटर का वायर हुआ तो रेजिस्टेंस विल बी 6 ohms, 3 मीटर्स का हुआ तो 9 ohms वैसे। ओके, ए पार्ट, the total resistance of 3 lengths of this wire, each 1.5 meter long, joined in parallel। क्या कहा है, हमें टोटल रेजिस्टेंस फाइंड करना है। 3 लेंथ्स ऑफ दिस वायर, ईच 1.5 मीटर लॉन्ग, मतलब 3 वायर है ऐसे 1.5 मीटर लॉन्ग, 1.5 मीटर लॉन्ग ऐसे 3 वायर्स है, और इन तीनों को पैरेलल में कनेक्ट किया है, ठीक है। इन तीनों वायर्स को पैरेलल में कनेक्ट किया है, they are connected in parallel। okay, so 3 वायर्स है, मतलब वायर्स है मतलब रेजिस्टेंस है बेसिकली, आप समझो 1.5 मीटर लॉन्ग। ओके, नाउ 1.5 मीटर तो उसकी लेंथ है, तो उसका रेजिस्टेंस कितना होगा। सी 1 मीटर का रेजिस्टेंस है 3 ohms, 1 मीटर का रेजिस्टेंस है 3 ohms, तो 1.5 मीटर का कितना होगा, ठीक है। आप चाहिए तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लो, आपको अगर ओरली आता है तो आप ओरली कर सकते हो, ठीक है। आप क्रॉस मल्टीप्लाई भी कर सकते हो, 1 मीटर इज 3 ohms, then 1.5 मीटर विल बी x, you cross multiply you will get x as 4.5 ohms। ओके, मतलब ये 1 मीटर का वायर है, दिस इज नथिंग बट इट इज लाइक दिस, देयर आर 3 रेजिस्टर्स of 4.5 ohms connected in 4.5 connected in parallel। Now we will find the answer to this। Okay, 4.5 ohms, 3 resistance connected in parallel। तो अब इसका रिक्वायर्ड रेजिस्टेंस कैसे निकालेंगे, 1/Rp is 1/R1 plus 1/R2 plus 1/R3। So 1/Rp is 1/R1 means 1/4.5 plus 1/4.5 plus 1/4.5। So denominator is same, numerator 1 plus 1 plus 1, 3। So Rp will be 4.5/3। क्या आंसर आएगा, 1.5 ohms। So the total resistance of 3 lengths of each 1.5 meter long wire joined in parallel is 1.5 ohms। ओके, ठीक है। नेक्स्ट इज द पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ द बैटरी। फाइंड द पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ द बैटरी विच गिव्स द करंट ऑफ 2 amperes in each of the 1.5 meter length wire। each of the 1.5 meter length wire मतलब 1.5 मीटर का वायर है, ठीक है, और करंट कितना फ्लो हो रहा है, how much is the current, 2 amperes। 2 amperes, and we have to find the potential difference।
ओके दे हैव सेड इन ईच ऑफ द 1.5 मीटर वायर, मतलब एक ही वायर की बात कर रहे हैं। तो अगर 1.5 मीटर वायर है तो इसका रेजिस्टेंस कितना होगा? रेजिस्टेंस कितना होगा? 4.5 ohms। वी नो दैट 1.1 मीटर वायर का 3 ohms है, तो 1.5 मीटर वायर का 4.5 ohms होगा। सो टेक द resistance as 4.5 ohms, current as 2 ampere, and then do V is equal to IR. 2 into 4.5, that is 9 volts. Next, C part. Now C part is important. It says the resistance of 5 meter length of wire. So length कितना दिया है? 5 meter. Find the resistance of 5 meter length of wire of same material, but twice the area of cross section. Twice the area of cross section. Area of cross section उन्होंने बोला है twice है. अगर एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ट्वाइस होता है तो क्या चेंजेस आता है? रेजिस्टेंस हाफ हो जाता है। रेजिस्टेंस हाफ हो जाता है। मैंने आपको लिखवाया था, याद है आपको? एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन और रेजिस्टेंस का रिलेशन याद ही रखो, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। ओके, तो अगर एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ट्वाइस हो गया तो रेजिस्टेंस हाफ हो जाता है, दैट इज द रिलेशन। तो लेंथ अगर 5 मीटर्स है, सो फॉर अ 5 मीटर वायर रेजिस्टेंस विल बी 15 ohms. 5 into 3 ohms, that is 15 ohms. Okay, but area is twice. But we will write here. But area is twice. So resistance will have half हो जाएगा. Okay, so you will get R as 15 upon 2, that is 7.5 ohms. Okay, next question. Question number 26 is already done. Question number 27. A battery of EMF 15 volts, EMF is 15 volts, and internal resistance means small r is 3 ohms, is connected to two resistors 3 ohms and 6 ohms in parallel. So दो resistors है R1, R2, 3 ohms and 6 ohms, and they are connected in parallel. They are connected in parallel. Okay. So diagram बना लेते हैं इसका. EMF is 15 volts. ये देखो मैंने पास में बैटरी के पास में एक छोटा रेजिस्टर बनाया, दैट इज 3 ohms. ये होता है इंटरनल रेजिस्टेंस, एंड एक्सटर्नल रेजिस्टेंस आर 3 ohms and 6 ohms. Okay. Now what do we have to find? The current through the battery. We have to find the current through the battery.
तो पहले इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड कर लेते हैं। R1 और R2 they both are in parallel. Okay, so 1 upon RP will be 1 upon R1 plus 1 upon R2. So 1 upon 3 plus 1 upon 6. So 2 plus 1 upon 6 that is 3 upon 6. ठीक है, so आपको RP क्या मिलेगा? 2 ohms. RP will be 2 ohms. RP 2 ohms है, मतलब ये जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है दिस इज 2 ohms. मींस ये दोनों का कॉम्बिनेशन का आंसर है 2 ohms. वो हमें चाहिए टोटल सर्किट का करंट अगर फाइंड करना है तो टोटल रेजिस्टेंस पता होना चाहिए. ठीक है, ये तो इंटरनल रेजिस्टेंस है, ये एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है, तो टोटल एक्सटर्नल रेजिस्टेंस कितना है? 2 ohms. ठीक है, अब फाइंड करते हैं करंट. रिमेंबर आपको ईएमएफ दिया हुआ है, ध्यान रखना ईएमएफ दिया हुआ है. सो ईएमएफ का फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा. ईएमएफ इज I into R plus R. Okay, so EMF is given as 15. I you don't know. R the external resistance is 2 ohms and the internal resistance is 3 ohms. So 15 upon 5 is I. So I is 3 amperes. The current in the circuit is 3 amperes. Okay. Now, next is the potential difference between the terminals of the battery. मतलब क्या ढूंढना है? Potential difference between the terminals of the battery means what do we have to find? Potential difference between the terminals of the battery मतलब V, capital V, terminal voltage मतलब potential difference between the terminals of the battery मतलब V. तो V क्या होता है? IR. V is IR. करंट है 3 amperes और R क्या आएगा? ये पूरा एक्सटर्नल रेजिस्टेंस that is 2 ohms. So आंसर आ गया 6 ohms. Potential difference across the terminals of the cell is 6 ohms. अब फिर पूछा है करंट इन 3 ohm रेजिस्टर, करंट इन 6 ohm रेजिस्टर. 3 ohm के अंदर कितना करंट गया था और 6 ohm के अंदर कितना करंट गया था, तो इजीली ढूंढ सकते हैं. ठीक है, हमें वोल्टेज भी पता है, अभी 6 ohms है तो दो बार V is equal to IR करना है, C part and D part. So V is equal to IR. So V कितना है? 6 volts. I नहीं पता और पहले 3 ohm के अक्रॉस चाहिए तो यहाँ पे 3 ले लेंगे. ठीक है, फिर वापस V is equal to IR, वोल्टेज 6 और इस बार रेजिस्टर 6 ohms लेंगे. एक बार 6 और एक बार 3. हमेशा ohms लॉ से ही फाइंड करना है. रेजिस्टर के अक्रॉस का अगर वोल्टेज पूछते हैं कि 3 ohm रेजिस्टर में कितना करंट है, 4 ohm में कितना करंट है, 5 ohm में कितना करंट है, तो वो V is equal to IR से ही फाइंड करना है. ठीक है, here you will get the current as 2 ampere and here you will get the current as 1 ampere. This is your final answer. Do it. Next, question number 28. Diagram is given. Two resistors. One is 2 ohm and one is unknown. ये 2 ohms है and this is R ohms. R ohms means it is unknown. This resistor here is 4 ohms. Current flowing in the circuit is 0.25 amperes.
बैटरी हैज EMF 2 volts एंड 3 ohms। ये जो बैटरी के पास 3 ohms लिखा है, ये क्या है? इंटरनल रेजिस्टेंस। इंटरनल रेजिस्टेंस। ओके, ठीक है। अब ध्यान से देखना है यहाँ पे क्या ढूंढना है। क्या पूछा है? फाइंड द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द 4 ohm resistor। First part is find the potential difference across the 4 ohm resistor। Potential difference means voltage, ठीक है? तो voltage V is equals to IR across 4 ohm बोला, तो रेजिस्टर की जगह पे 4 ohms लेंगे, सिंपल। करंट तो ऑलरेडी दिया हुआ है 0.25 एम्पीयर, कुछ करना ही नहीं है। 0.25 into 4, आंसर आएगा 1 volts। बी पार्ट में पूछा है पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द इंटरनल रेजिस्टेंस। इंटरनल रेजिस्टेंस कितना है? 3 ohms अक्रॉस 3 ohms, तो वापस V is equals to IR। करंट इज अगेन सेम, करंट हमेशा सेम रहता है 0.5 into इंटरनल रेजिस्टेंस कितना है? 3 ohms। So you will get the answer as 0.75 volts। सर लेकिन जब हम लोग अगर फोर रेजिस्टेंस की कंडक्टर से पास कर रहे हैं तो सर वो आगे जाके वो पैरेलल रेजिस्टेंस में स्प्लिट भी तो होएगा ना। करंट स्प्लिट हो रहा है, करंट स्प्लिट होता है, बट इसमें से कितना करंट जा रहा है 4 ohms में से? सी, ये 0.25 करंट आया, इसमें डिवाइड हुआ, ओके, वापस आके मिल गया, तो 0.25 जो इधर था वही 0.25 4 ohms में भी जा रहा है। तो लेकिन रेजिस्टेंस कम कर देते हैं ना करंट को। करंट को कम करते हैं, वो करंट को कम ऐसे बीच में नहीं करता है, पूरे सर्किट में ओवरऑल करंट कम होता है। ओके, तो करंट कभी ऐसा नहीं होता कि यहाँ पे 0.25 है और यहाँ पे 0.2 हो जाएगा, ऐसे नहीं होता, पूरे सर्किट में सेम करंट रहता है, ठीक है। तो वो कैसे होता है कि यहाँ से जब आपने इलेक्ट्रॉन्स को पुश करता है, बैटरी क्या करता है? इलेक्ट्रॉन्स को पुश करता है, ठीक है। तो उसने एक बार पुश किया तो वो इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे गए, उन्होंने अपना काम किया और फिर यहाँ पे आए, अब वो उसे वापस पुश करेगा, ओके। तो जो भी करंट कम ज़्यादा होगा वो बैटरी के सोर्स से होगा, कम ज़्यादा होगा, ठीक है। पूरे सर्किट में हमेशा सेम करंट फ्लो होगा, और इसके और इसके अंदर करंट 0.25 से कम होगा क्योंकि डिवाइड हो रहा है यहाँ पे, ठीक है। और डिपेंड करेगा डिवाइड कैसे होगा, जो रेजिस्टेंस वो डिपेंड, अगर दोनों रेजिस्टर इक्वल है तो इक्वली डिवाइड होगा, बट अगर एक रेजिस्टर ज़्यादा है और एक कम है तो कम वाले में ज़्यादा करंट जाएगा, बरोबर, ठीक है। अभी नेक्स्ट क्या पूछा है हमें? अभी इंपॉर्टेंट पार्ट एक जो आपको समझना है। सी पार्ट में पूछा है फाइंड द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस R ohms और 2 ohms रेजिस्टर, ये पूछा है। फाइंड द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस R ohm और 2 ohm रेजिस्टर, ओके। जब भी दो रेजिस्टर पैरेलल में होते हैं, दो रेजिस्टर्स अगर पैरेलल में होते हैं तो उनके अक्रॉस का जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है वो सेम होता है। सी, पैरेलल कॉम्बिनेशन में, अगर ऐसा पैरेलल कॉम्बिनेशन में हमने डेरिवेशन में भी पढ़ा है कि इनके अक्रॉस जो वोल्टेज होगा वो सेम होता है, पोटेंशियल डिफरेंस सेम होता है। इनके अंदर जो करंट जाने वाला है वो करंट अलग अलग होगा दोनों में। करंट जो यहाँ से जाएगा वो आधा इधर जाएगा, थोड़ा इधर जाएगा, ठीक है, करंट अलग अलग होगा, लेकिन जो वोल्टेज होता है पैरेलल रेजिस्टर में वो सेम होता है। इसलिए उन्होंने क्वेश्चन कैसे फ्रेम किया है, फाइंड द पीडी पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस R ohm और 2 ohm रेजिस्टर। क्वेश्चन ऐसे क्यों लिखा है, और क्यों लिखा है यहाँ पे? क्योंकि आप R ohm के अक्रॉस करो या 2 ohm के अक्रॉस करो, आंसर सेम ही आता है, ओके। अक्रॉस करने का मतलब क्या होता है? ऐसा कनेक्शन किया उसमें, ठीक है। तो ये जो पॉइंट्स है यहाँ पे जहाँ से हम वोल्टेज ले रहे हैं, यही दोनों पॉइंट्स इसके पास भी जा रहे हैं और यही दोनों पॉइंट्स इसके पास भी जा रहे हैं। ये जो कनेक्शन है यहाँ पे, ये सेम कनेक्शन ये रेजिस्टर के लिए है और ये सेम कनेक्शन ऊपर वाले रेजिस्टर के लिए, ठीक है। तो जो भी यहाँ पे वोल्टेज मिलेगा आपको वो इसके अक्रॉस भी वही जा रहा है और इसके अक्रॉस भी वही जा रहा है, समझ में आई बात? तो हमेशा याद रखो कि पीडी अक्रॉस, अगर समझो एक ऊपर वाले रेजिस्टर के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस पूछ रहे हैं तो वही इसके अक्रॉस भी होगा क्योंकि दोनों पैरेलल में है, तो दोनों के अक्रॉस सेम वोल्टेज होगा, ठीक है। बी
ठीक है, तो ये बात आपको समझ में आ गई कि दो पैरेलल रेजिस्टर के अक्रॉस जो वोल्टेज होता है वो सेम होता है। ठीक है, अब मुझे एक और चीज बताओ, यहाँ पे बैटरी 2 वोल्ट दे रहे हैं, बरोबर, ये बैटरी ने 2 वोल्ट भेजा है, ये 2 वोल्ट्स पूरे सर्किट में यूज हो रहा है। कहाँ कहाँ यूज होता है? वोल्टेज यूज कहाँ पे होता है? जहाँ पे रेजिस्टेंस होता है। एक अप्लायंस मतलब एक रेजिस्टेंस, ठीक है, जो वोल्टेज को यूज अप करता है। ठीक है, तो थोड़ा वोल्टेज तो यहाँ पे जाएगा क्योंकि यहाँ पे इंटरनल रेजिस्टेंस है। तो कितना वोल्टेज गया है यहाँ पे? आपने फाइंड भी किया है 0.75 वोल्ट्स। वोल्टेज पोटेंशियल डिफरेंस, ये हमने यही फाइंड किया ना, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस 3 ओम्स। तो जो टोटल 2 वोल्ट्स का पोटेंशियल डिफरेंस है उसमें से 0.75 वोल्ट्स तो इधर ही चला गया, बरोबर, 0.75 वोल्ट्स यहाँ पे चला गया। फिर पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस 4 ओम्स, तो इसने कितना यूज किया? 4 ओम्स ने 1 वोल्ट यूज किया। ठीक है, इसने 0.75 यूज किया, बैटरी ने 4 ओम्स ने 1 वोल्ट यूज किया, तो कितना बचा? 0.25 बचा। टोटल वोल्टेज 2 वोल्ट्स था। ओके, सो टोटल voltage is nothing but potential difference across cell, potential difference across 4 ohms plus potential difference across R ohms or 2 ohms। इसमें मैंने क्या लिखा? जो 2 वोल्ट्स है वो सेल ने यूज किया है, ये पैरेलल कॉम्बिनेशन ने यूज किया है, और ये 4 ohms ने यूज किया है। इन तीनों ने उस वोल्टेज को डिवाइड करके यूज कर रहे हैं। ठीक है, तो टोटल वोल्टेज 2 वोल्ट्स है, सेल ने यूज किया 0.75, 4 ohms ने यूज किया 1 वोल्ट, तो इसने कितना यूज किया होगा? R ohms या 2 ohms वाले ने, इसको माइनस करेंगे, सो 2 minus 1.7 दैट इज 0.25 वोल्ट्स। लेकिन सर हम लोग जो नॉर्मल VIR वाले फॉर्मूला से कर रहे थे सर 5 वोल्ट आ रहा है, 0.5 वोल्ट आ रहा है। आपने V IR से किया, आपको इसका रेजिस्टर पता है क्या? R ohms का। लेकिन सर आपने बोला कि PD दोनों का सेम ही होएगा। सेम रहता है, यस, इनके अक्रॉस PD सेम है। ओके, बट वो अगर आपको फाइंड करना है ना, तो आपको ये दोनों का पैरेलल कॉम्बिनेशन लेना पड़ता है। हाँ, इक्विवेलेंट लेना पड़ता है। तो समझो अगर आपको ऐसा कोई क्वेश्चन आ गया एग्जाम में, मैं एक क्वेश्चन बनाता हूँ यहाँ पे, ये एक रेजिस्टर है, ये एक और रेजिस्टर है, ठीक है, यहाँ पे बैटरी है और यहाँ पे करंट दिया है 0.25। ठीक है, ये आपको ये दिया है 2 ohms और ये दिया है 2 ohms। आपको बोला है वोल्टेज फाइंड करो। ठीक है, तो आप ये वोल्टेज फाइंड करने के लिए दोनों में से एक ही रेजिस्टर लोगे क्या? आपको दोनों लेना पड़ेगा। इन दोनों का पैरेलल पहले फाइंड करोगे, फिर उस R को यूज करोगे यहाँ पे। ओके, फिर जो भी आंसर आएगा वो इन दोनों के लिए एप्लीकेबल है। दोनों के लिए एप्लीकेबल होने का मतलब क्या है? सी, समझिए करंट नहीं दिया होता, अज्यूम करो करंट नहीं दिया है, आपको वोल्टेज दिया हुआ है 2 वोल्ट्स। ठीक है, मैं आपको बोल रहा हूँ फाइंड द करंट अक्रॉस 2 ओम रेजिस्टर। ओके, तो आप वोल्टेज क्या लोगे 2 ओम्स के लिए? ये जो 2 ओम्स है इसके लिए करंट फाइंड करने के लिए वोल्टेज 2 वोल्ट्स ही लोगे। मैं बोलूँगा ये नीचे वाले 2 ओम्स के अक्रॉस करंट फाइंड करो, तो उसके लिए भी आप ये 2 वोल्ट्स लोगे। मतलब ये जो सेम वोल्टेज है ये दोनों रेजिस्टर को जा रहा है, उसका मतलब होता है कि PD अक्रॉस दिस बोथ रेजिस्टर इज सेम। तो इसलिए हम जब इंडिविजुअल करंट फाइंड करते हैं रेजिस्टर्स में तो वोल्टेज सेम ही लेते हैं, करंट अलग अलग होते रहता है। ओके, समझ में आ रहा है? ठीक है, तो PD अक्रॉस R ohms and 2 ohms is 0.25 volts। अब सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट, फाइंड द वैल्यू ऑफ R। कैसे ढूंढ सकते हैं R? 0.25 मिल गया। 0.25 इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। वोल्टेज है 0.25। 0.25। हाँ, तो 0.25 इसका वोल्टेज है, इसके अक्रॉस कितना वोल्टेज है? 0.25। ठीक है, करंट कितना है? 0.25 एम्पियर, और रेजिस्टेंस ये दोनों पैरेलल में है। ओके, तो अगर मैं V IR लिखूँ यहाँ पे D पार्ट के लिए, तो वोल्टेज की जगह पे मैं लिखूंगा 0.25 वोल्ट्स
करंट की जगह पे मैं लिखूंगा 0.25 एम्पियर्स, ओके। और आर की जगह पे मैं क्या लिखूंगा, इनका कॉम्बिनेशन है आर, ठीक है, इनका कॉम्बिनेशन है, तो इसको ऐसे लिखता हूँ 1/2 प्लस 1/r। सही है कि नहीं? आप चाहिए तो यहाँ पे सिर्फ एक आर यूज कर सकते हो, आरपी, ओके, और फिर उस आरपी को यूज करके वापस आर ढूंढ सकते हो, या डायरेक्टली कर सकते हो। इसका मतलब यही हुआ ना, ये क्या है, दिस इज नथिंग बट ये 1/rp होता है। एक काम करते, हम ऐसे नहीं करते, इसको हम आरपी लेते हैं, जो इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होगा इसका पूरे का, ठीक है। एक और तरीके से फाइंड कर सकते हैं इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, मैं वो भी बताऊंगा कैसे करते हैं, पहले ये कर देते हैं, ठीक है। तो इसके अक्रॉस वोल्टेज है 0.25 वोल्ट्स, करंट है 0.25 वोल्ट्स, तो आरपी क्या मिलेगा 1 ओम्स। सो इसका रेजिस्टेंस का वैल्यू मिला 1 ओम्स, मींस 1/rp इक्वल्स 1/r1 प्लस 1/r2, ओके। सो rp इज 1 ओम्स, r1 एक 2 ओम्स है और दूसरा r है, नहीं पता उसकी वैल्यू क्या है, तो ये इसको यहाँ पे लिख देते 1 माइनस 1/2 इक्वल्स 1/r, 1 माइनस हाफ इज हाफ, सो r इक्वल्स 2 ओम्स, r इक्वल्स 2 ओम्स। समझ में आया क्या किया क्वेश्चन में? एक बार वापस बताता हूँ मैं रफली। पहले ये 2 वोल्ट्स था, ये 2 वोल्ट्स इंटरनल रेजिस्टेंस ने यूज किया, 4 ओम्स ने यूज किया, और ये कॉम्बिनेशन ने यूज किया, ठीक है। हमने उसको डिवाइड करवाया, यहाँ पे 0.75 है, यहाँ पे 1 वोल्ट गया, तो यहाँ पे 0.25 वोल्ट्स गए, ओके। फिर ये 0.25 और ये 0.25 एम्पियर करंट, इन दोनों से हमने इसका रेजिस्टेंस निकाल दिया। इसका रेजिस्टेंस था कॉम्बिनेशन का 1 ओम्स, तो अगर इस कॉम्बिनेशन का रेजिस्टेंस 1 ओम्स है तो इसका हम मिल सकता है 1/rp 1/r1 1/r2, इसमें ये, ठीक है, ये हो गया। दूसरा एक और तरीका बताता हूँ। पैरेलल में रेजिस्टेंस लगाते ही क्यों है? अच्छा 1 ओम का एक ही रेजिस्टेंस लगा देने का ना? सही बात है, बिल्कुल सही बात है। पैरेलल क्यों लगाते हैं पता है? पैरेलल की वजह से हम रेजिस्टेंस चेंज कर सकते हैं इजीली, ठीक है। मतलब समझो आपका एक सर्किट बना हुआ है, आपका एक सर्किट बना हुआ है ऐसा, ओके, कुछ करंट इससे फ्लो हो रहा है, आपको इस सर्किट के करंट को कम करना है, तो आप बाहर से एक रेजिस्टर लाओगे और इसके ऊपर लगा दोगे ऐसे, तो करंट कम हो जाएगा, ठीक है। वापस करंट नॉर्मल करना है तो इस बाहर वाले को हटा दो, सर्किट में कोई चेंजेस नहीं हुआ, ओके। बट अगर सीरीज में लगाना पड़ता है तो इस सर्किट को ब्रेक करना पड़ता है और फिर यहाँ पे रेजिस्टर को डालना पड़ता है बीच में, समझ रहे हो? तो पैरेलल तो सिर्फ बाहर से ही लग जाता है तो काम हो जाता है। लेकिन सीरीज में भी ऊपर से कनेक्शन दे सकते हैं। हाँ कैसे दे सकते हैं सीरीज में ऊपर से connection? वो पैरेलल हो गया ना? पैरेलल ऊपर से कनेक्शन दे दिया ऐसे तो ये पैरेलल हो गया, ये पैरेलल हो जाता है। करंट डिवाइड नहीं होना चाहिए, सीरीज में करंट सेम रहता है दोनों में से। दूसरा तरीका मैं ये बता रहा था, आप ऐसे भी फाइंड कर सकते थे रेजिस्टेंस को ईएमएफ के फॉर्मूला से। ईएमएफ इज I * R + R, ईएमएफ कितना है 2 वोल्ट्स, करंट कितना है 0.25, ठीक है। ये R मतलब सारा एक्सटर्नल रेजिस्टेंस, ये R होता है, ठीक है। एंड स्मॉल r इज 3 ओम्स, यहाँ पे ध्यान दो। तो मैंने क्या किया देखा, EMF इज I R + R, ये R क्या होता है एक्सटर्नल रेजिस्टेंस पूरा, और ये R स्मॉल r मतलब इंटरनल। इसको मैं सॉल्व करूंगा, ये 0.25 को आप 2 से डिवाइड करोगे तो आपको 8 मिलेगा, तो आपको R क्या मिला 5 ओम्स, बरोबर। R 5 ओम्स मिला, मतलब ये पूरा 5 ओम्स है जिसमें से ये 4 है तो ये 1 होगा,
ओके, तो अगर ये वन ohms है तो उससे भी आप ढूंढ सकते हैं। दूसरा रहने दो सर, एक ही रख दोनों में वो confusion भी हो कंफ्यूजन की बात नहीं, मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि आप अलग अलग फॉर्मूले से कैसे ला सकते हो आंसर को। ठीक है, तो ये भी मेथड बहुत सिंपल ही था, देखने जाएंगे इससे भी आंसर आ सकता था। So, और इन सब में तो करना है। अभी यूज होगा वापस। इन सब में करना है। जैसे टफ वाले पूछेंगे पेपर में। आ सकते हैं। 29 वन तो बहुत इजी है, 29, 20, 30 बहुत इजी है। डायग्राम सिर्फ मुश्किल लग रहा है लेकिन सब एकदम सिंपल है। Two ohms, 6 ohms, 4 ohms, voltage 6 volts, and we have to find the effective resistance of the circuit and reading of the ammeter. एकदम सिंपल क्वेश्चन है। इफेक्टिव रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट। इफेक्टिव रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट मतलब टोटल रेजिस्टेंस फाइंड करना है सर्किट का। ठीक है, डायग्राम को ध्यान से ऑब्जर्व करो। डायग्राम को ऑब्जर्व करके मुझे बताओ कि कौन से रेजिस्टेंस पैरेलल में है और कौन से सीरीज में। 2 और 4 सीरीज, 2 और 4 सीरीज। ये 2 और ये 4 इनमें से ये डायरेक्टली कनेक्टेड है। देखो इधर से डायरेक्ट उधर गया, कोई ये नहीं है, तो डायरेक्टली कनेक्टेड है मतलब ये दोनों सीरीज में है। ठीक है, अगर इन दोनों को मैं सीरीज में लूंगा 4 + 2 दैट इज 6 ohms मिलेगा। ठीक है, तो ये डायग्राम कैसे बन जाएगा अभी? ये एक 6 ohms है और इन दोनों को सीरीज में ले लिया तो यहाँ पे एक और 6 ohms आ गया अभी। ऐसा बन जाएगा डायग्राम। अब ये दोनों पैरेलल में है। ठीक है, तो अब इनका पैरेलल सॉल्व करो। आप लोग ये समझ भी गए होंगे कि जब दो सेम रेजिस्टर होता है तो पैरेलल का आंसर उसका हाफ आता है। ठीक है, दिस आंसर यू विल गेट इज Rp = 3 ohms। ओके, मतलब ये जो सर्किट है ये इफेक्टिवली अभी कितना सा बन गया, इसको मैंने पूरा रिड्यूस कर दिया, ये सर्किट ऐसा बन गया अभी। कितना सिंपल सर्किट बन गया ये, इस तीनों रेजिस्टर को सॉल्व करके एक बना दिया। अब इसका करंट फाइंड करना कितना सिंपल है, R है, V है, V = IR, एकदम इजी। ये क्वेश्चन आ गए ना, 3 मार्क्स बोनस। इतना सिंपल क्वेश्चन। So I is 2 amperes. Done sir. विलियम से सीए की न्यूमेरिकल्स भी Okay. Question number 29 done. Question number 30 भी सेम है। 30 स्टार्ट करो। तो खुद से कर लो, वो भी चाहते हैं। अरे मैं चेक कर रहा मेरा चेक करो। हूँ मेरा Question number 30. Again, we have to find the total resistance and the current. सेम ही तरह का क्वेश्चन है। सर इस टाइम 2 बार पैरेलल में लेके एक बार सीरीज में लेना है। करेक्ट। Now these 3 resistors are in parallel and these 2 resistors are in parallel. ठीक है,
तो ये भी पैरेलल में है और ये भी पैरेलल, तो इन दोनों का आंसर फाइंड कर लेते हैं। ये अगर पैरेलल में है तो 1/30 प्लस 1/20 प्लस 1/60, सो द LCM विल बी 60। तो यहाँ पे 2 प्लस 3 प्लस 1/60, so 1/RP is 6/60, so RP मिला 10 ohms। ये इसके लिए मिला, इस कॉम्बिनेशन का। फिर इस कॉम्बिनेशन का भी ढूंढना है। For this combination, 1/RP equals 1/10 plus 1/40, 3 plus 1/40, so RP will be, 0.1 ये भी 10 ही मिल रहा है, ये भी 10 मिला, दोनों 10 मिले। सर वो 8 है फर्स्ट वाला। अच्छा फर्स्ट वाला 8 है, क्या 4 plus 1 आएगा, 3 नहीं आएगा। इधर 3 plus 1 लिखा है। सर 4 + 1 होगा 2 उधर। plus 1 आएगा। सर वो साइड, वो साइड पे इस राइट। सर वो सर 10 और 40 वाला 4 + 1 है, 3 + 1 है। हाँ यहाँ पे मिस्टेक है, वही बोला, ये तो सही लग रहा है, ये 4 है, करेक्ट है। LCM के लिए 4 से मल्टीप्लाई करना है, 5 so this will be 5, so this will be 8। so RP is 8। अब this सर्किट में, इस सर्किट में क्या हो गया, ये पूरे पार्ट का आंसर हमें मिल गया 10 ohms, और ये पूरे पार्ट का आंसर हमें मिल गया 8 ohms। ओके, और ये दोनों तो डायरेक्टली कनेक्टेड है एक दूसरे से, so these two are in series। ओके, so total resistance is 8 ohms plus 10 ohms, that is 18 ohms R of the circuit. Total resistance of the circuit is 18 ohms। Now we find the current, V is equal to IR। so V दिया हुआ है 1.8 और resistance है 18, so 1.8/18 is I, so I is 0.1 ampere। This was the B part of the question। Last question, question number 31। डायग्राम दिया हुआ है वापस, अच्छा वाला एमीटर, और एमीटर के ऊपर लिखा हुआ है 0.8 ohms। तो 0.8 ohms क्या है, एमीटर रेजिस्टेंस। एमीटर का रेजिस्टेंस। 4.5 and 9 ohms, 2 volts, और बैटरी के पास भी लिखा है 1.2 ohms। ओके, सी ये बैटरी का इंटरनल रेजिस्टेंस है और ये 0.8 है ना, ये एमीटर का इंटरनल रेजिस्टेंस है, ठीक है, ये एमीटर का इंटरनल रेजिस्टेंस है। लेकिन हमारे लिए अगर क्वेश्चन में जैसे लिखा हुआ भी आया, उन्होंने यहाँ पे नहीं दिया, बट कभी कभी क्वेश्चन में देते हैं दैट 0.8 ohms इज द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द एमीटर। ओके, अब अगर वो एमीटर का इंटरनल रेजिस्टेंस है लेकिन हमारे लिए वो एक्सटर्नली होता है, हम सिर्फ बैटरी के रेजिस्टेंस को स्मॉल आर लेते हैं, बाकी किसी को भी स्मॉल आर नहीं लेंगे, बाकी सब कैपिटल आर में आ जाता है। समझ गए? तो कंफ्यूज नहीं होना है। अगर उन्होंने ऐसा लिखा भी है कि ये एमीटर का इंटरनल रेजिस्टेंस है, बट ये हमारे लिए इंटरनल नहीं है, हमारे लिए एक्सटर्नल ही है, ठीक है, क्योंकि एमीटर एक एक्सटर्नल डिवाइस है। ओके, सो व्हाट डू वी हैव टू फाइंड द रीडिंग ऑफ द एमीटर। सो पहले इसका कॉम्बिनेशन फाइंड कर लो पैरेलल का। So 1/RP is 1/4.5 plus 1/9 ohms। So 4.5 का LCM कैसे आएगा, into 2 कर लेंगे, so 2
2 plus 1 upon 9. So 3 upon 9. That is 1 upon 3. So you will get RP as 3 ohms. To capital R 3.81. We got this resistor, the combination of parallel as 3 ohms. Okay. Now we have to find the current. So EMF दिया हुआ है तो EMF वाला फॉर्मूला यूज करो. I into R plus R. EMF is I into R plus R. So EMF is 2 volts. कैपिटल R क्या होगा? कैपिटल R होगा इसका 3 ohms और ये भी कैपिटल R में काउंट होगा. ठीक है. तो जो आपका कैपिटल R है that will be 3 ohms plus 0.8, that is 3.8 ohms. 3.8 ohms plus small r is 1.2 ohms. So 2 is equal to I into 5. So 2 upon 5 is I. तो I क्या मिला? 0.4. 0.4 amperes. This is the current in the circuit. Next is the potential difference across the terminals of the cell. मतलब potential difference across the terminals of the cell means capital V. Terminals word आ गया मतलब terminal voltage. ठीक है. मतलब V ढूंढना है. तो V क्या होता है? I into capital R. So I तो मिला हुआ है 0.4 ohms एम्पियर अभी और कैपिटल R क्या है? 3.8. क्या आंसर आएगा इसमें? 1.52. 1.52 volts. ठीक है. इजी है. अब ये ट्रिक क्वेश्चन है. सी पार्ट. दे हैव सेड फाइंड द पोटेंशियल डिफरेंस. फाइंड द पोटेंशियल डिफरेंस बोला है. पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस 4.5 ohms. ओके. अगर करंट बोलते हैं ना करंट तो हम रेजिस्टर 4.5 ohms ही लेते हैं. बट यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस बोला है. तो पोटेंशियल डिफरेंस के लिए अगर 4.5 ohms के अक्रॉस बोला है आपको पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड करने के लिए, मतलब जो यहाँ का आपको वोल्टेज पूछा है, तो मैंने बताया है कि पोटेंशियल डिफरेंस के लिए इन दोनों को काउंट करना पड़ता है. दोनों रेजिस्टर्स को कंसीडर करना पड़ेगा. तो इनका जो पैरेलल का आंसर क्या है? 3 ohms. वो 3 ohms वहां पे यूज होगा. तो इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस मतलब इसका कॉम्बिनेशन काउंट होगा यहाँ पे. ठीक है. सो पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस 4 और 4.5 ohms. सो resistance here will be 3 ohms. So V is equal to IR. So V is current is 0.4 into resistance is 3. So answer will be 1.2. See फर्क समझो. वापस मेरी बात समझो. जब हमें करंट फाइंड करना होता था, करंट अक्रॉस ए रेजिस्टर, ठीक है, जब करंट फाइंड करना होता था तब जो रेजिस्टर ने यहाँ पे वैल्यू दी है ना उसको यूज करते थे फॉर्मूला. ठीक है. लेकिन पोटेंशियल डिफरेंस के लिए ऐसा नहीं होता. पोटेंशियल डिफरेंस के लिए ऐसा नहीं होगा. करंट ढूंढते वक्त जो रेजिस्टर है उसको यूज करो. पर पोटेंशियल डिफरेंस अगर ढूंढना है तो जो रेजिस्टेंस का कॉम्बिनेशन का आंसर है उस कॉम्बिनेशन के आंसर को यूज करना पड़ेगा. ठीक है. नया तो भी चल. That's it for today. सब आता है. That's it for today. Thank you.